हाँ जी, सो ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MCQ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਥਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨਵਰਜਸ ਟੂ ਦ ਰੂਟ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ, ਨਿਊਟਨ, ਰੈਫਸਨ, ਬਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਸੀਕੈਂਟ ਮੈਥਡ ਤੇ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਆਊਗਾ, ਬਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰੋਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਡਬਲ ਰੂਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ B ਆਊਗਾ। ਸਮ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੋਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਟਨ ਰੈਫਸਨ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਕਨਵਰਜੈਂਸ। ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਰੈਫਸਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ 2 ਹੈ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ 2 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਟਰੂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ B ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਨਿਊਟਨ ਰੈਫਸਨ ਇਜ਼ 2, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਲਓ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਬਣ ਜੂ ਇਹਦਾ 1। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ D ਕੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈਜ਼ ਫਾਸਟੈਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਕਨਵਰਜਨ। ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਮ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੇਖੋ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਪਲੱਸ 2x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ x ਮਾਈਨਸ 1। ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ -1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਪਲੱਸ 2 -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 -1 -1 ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 1 ਹੋ ਜੂ, ਆ -2 ਹੋ ਜੂ, +1 -1। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। -1 ਪਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, 0 ਭਰੀਏ, ਆ ਵੀ 0 0 0 ਦੋਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਰਿਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। 1 ਭਰੀਏ, 1 ਭਰਾਂਗੇ 1 ਆ ਜੂਗਾ, +2 -1 -1, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਤਾਂ 0 ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ D ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ।
बाकी चेक कर लेने आप बी चेक कर लो जो 1 भरिया पॉजिटिव आ गया 2 भर के मैंने 2 की पावर 4 16 प्लस 16 माइनस 2 माइनस ये भी पॉजिटिव आ गया दोनों इंटरवल पॉजिटिव आ गए सो ये ऑप्शन रिजेक्ट होगी सो ऑप्शन डी का आंसर है ठीक है जो भी किसी इक्वेशन के रूट लभने हो ना आप तो आप ऐ कर दें ठीक हाँ जी सम नंबर 4 देखो करैक्ट ऑप्शन लभनी है ए लॉग एक्स बी साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अलजबरिक इक्वेशन गलत है जी ये अलजबरिक नहीं ये अपने को हैगी है जी ट्रांसडेंटल इक्वेशन ट्रांसडेंटल इक्वेशन सो ऑप्शन ए गलत ऑप्शन बी बाद वेखेंगे ऑप्शन सी देखो बाइजेक्शन मैथड इज सॉल्विंग इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो एक्स एस इंटरवल में बिलोंग करता है वर्क ईवन इफ एफ इज डिसकंटिन्यूड सो ये भी ऑप्शन गलत है कि फंक्शन अपना इस इंटरवल की होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल सो ऑप्शन सी भी गलत होगी ऑप्शन डी रूट चेक करने नॉट रूट पैने पहला 2 भरो 4 माइनस 1 ये बन गया नैगेटिव 3 भरिए 9 माइनस 6 माइनस 1 ये बन गया पॉजिटिव ये रूट है ओके सो जो रूट है रूट जैस पर ये 9 पाता ये भी ऑप्शन गलत होगी बचा की ऑप्शन नंबर बी बचा कि न्यूटन रैप्सन मैथड अपने को सो न्यूटन रैप्सन मैथड की होंगे कि जो आप कोई वैल्यू फाइंड करनी है ना मान लो एक्स के प्लस 1 फाइंड करना है एक्स ऑफ के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाय एफ डैश एक्स के ये फॉर्मूला न्यूटन का जो डेरीवेटिव इज इक्वल टू 0 हो जाए मतलब तो न्यूटन रैप्सन मैथड की फेल हो जाता अपना सो यही थ्योरी चल देख रखी ने ठीक है फेल डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स वैनिश इन द नेबरहुड ऑफ डिजायर रूट ये मीनिंग है जी गल आप इतने बोली है जो डेरीवेटिव 0 गया तो इनफिनिटी बन जू तो डेरीवेटिव जो 0 हो जाता है तो न्यूटन रैप्सन मैथड की फेल हो जाता है सो ऑप्शन बी अपना आंसर है ओके सम नंबर 5 न्यूटन रैप्सन मैथड फेल विन होनी करके ने ऑप्शन सी डेरीवेटिव इज इक्वल टू 0 ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इन न्यूटन रैप्सन मैथड ये ऑप्शन नंबर ए 2 ये सवाल लेक्चर के दर्शाया गया ठीक हाँ जी सम नंबर 7 ते 8 देखो ये रिजल्ट अपने कुछ आ वाले जी याद रखने डेल्टा की अपना फॉरवर्ड डिफरेंस आ होंगे बैकवर्ड डिफरेंस आ होंगे शिफ्टिंग ऑपरेटर आ कि इनवर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर सो 5 रिजल्ट है 5 टोटल 7 रिजल्ट होंगे 5 लिख रखे आप हमें 5 याद किमें रखने आप आ एक कर लेने याद घेरा तो यार 3 आपे बन जाएंगे विचों देखियो 1 प्लस डेल्टा कह लो डेल्टा कह लो या न्यूटन सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंस कह लो 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1 तो इनू लिख दो ई का नाम दे दो इनू ई का इनवर्स नाम दे दो दोनों की मल्टीपली इज इक्वल टू 1 होगी सो 1 प्लस डेल्टा की इक्वल है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस की इक्वल है ई इक्वल है ठीक है तो एक रिजल्ट बन गया अपने को ई का इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस आ 2 रिजल्ट बन गए हम देखो कि ऑप्शन मिलता है ई इज इक्वल टू 1 डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस 1 इसका रिजल्ट ही नहीं बनता आ देखो इनवर्स इज इक्वल टू ये हो जाऊगा ये 1 बैकवर्ड के 1 माइनस हो जू गलत है आप कर दें 1 के माइनस करते आप ये भी गलत है आ लो आ मिल गया ऑप्शन नंबर सी ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ठीक है सो एक कर लो याद आ वाला आ ई है आ ई माइनस 1 है ई दी पावर मतलब ई इनवर्स है ठीक है अगे फिर सेम वही सवाल देखो कि कहानी मिलती है फॉरवर्ड इज इक्वल टू ई माइनस 1 फॉरवर्ड इज इक्वल टू ई प्लस 1 आ पे ई वाला फॉर्मूला ई इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ तो 1 इधर के माइनस हो जाऊगा। सो ऑप्शन ए ਇਹਦਾ आंसर बन गया। ठीक। हाँ जी, सम नंबर 9 देखो, न्यूटन फॉरवर्ड द स्केयर इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स। सो इनू अपन लिख देना, फॉरवर्ड का फॉर्मूला की है, फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला है। ठीक है। सो इनकी पावर ब्रेक करो पहला, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस ई दी पावर एक्स। सो पहला यदी वैल्यू सॉल्व करते हैं। सो पहला यदी वैल्यू कढ़ांगे ई दी पावर एक्स प्लस एच माइनस ई दी पावर एक्स। ये बाहर ला दो न्यू फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस यदी पावर ब्रेक कर दो, ई दी पावर एक्स इंटू ई दी पावर एच माइनस ई दी पावर एक्स। तो ई दी पावर एक्स कॉमन ले जाने पा, ई दी पावर एच माइनस 1 कले कले कर देने। ठीक है कि ई दी पावर एक्स तो आ तो कॉन्स्टेंट ही है, इनू बाहर कढ़ लेने पा, ई दी पावर एच माइनस 1। ठीक है, हुण ये उपर फिर ला दो, देखो ध्यान देना कि ई दी पावर एच माइनस 1 जो इनू सॉल्व करांगे यदी वैल्यू पर कड्ढी बैठे आ रही, ये आ जाऊगा ई दी पावर एक्स आ गया इंटू ई दी पावर एच माइनस 1। ठीक है। सो जो सिंगल ई दी पावर एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने को, ई दी पावर एक्स इंटू ई दी पावर एच माइनस 1 आ गया। जो डबल किया आ दोनों मल्टीप्लाई हो गई, ई दी पावर एच माइनस 1 द स्क्वायर इंटू ई दी पावर एक्स। सो डबल तो आ गया अपने को ई दी पावर एक्स इंटू ई दी पावर एच माइनस 1 द स्क्वायर। ठीक। सो ये जनरल फॉर्मूला। हम बाय ऑप्शन जो चेक करना हो एच की वैल्यू 1 भर दो, जो एच की वैल्यू 1 भरांगे सो बन गए ई माइनस 1 द स्क्वायर इंटू ई दी पावर एक्स। ऑप्शन नंबर बी का आंसर है। ठीक है। सो आई होप तुम कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। सो पहला तो ये बन गया नूमैरिकल जिसका आप आंसर लभ लिया। दूजा रिजल्ट की बनता जी फॉर्म है डेल्टा ऑफ स्केयर ई दी पावर एक्स, ये कि फॉर्म बन गई, ये ए पी बनती है कि जी पी बनती है। जो चेक करना हो तो डिवाइड करके वेखा ये बन जू अपनी जी पी। मैं डेल्टा की पावर एन हो ई दी पावर एक्स हो तो ये कि फॉर्म बन जाती है जी पी। ये भी एक रिजल्ट है। ठीक। सो सम नंबर 9 इसका आंसर आऊगा ऑप्शन बी। हाँ जी, सम नंबर 10 देखो, फॉरवर्ड डिफरेंस कॉस एक्स इज इक्वल टू, सो लगा दो फॉर्मूला ही कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस ऑफ एक्स। सो सी बन गया और डी बन गया, सी कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक। साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके। फिर माइनस 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2। ठीक। माइनस 2 साइन, फिर इन कले कले करेंगे डिवाइड, एक्स प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2। सो देखो कि ऑप्शन मिलती है अपन माइनस 2 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस साइन एच बाई 2। ऑप्शन नंबर सी का आंसर है। ठीक। हाँ जी, अगे सम नंबर 11 देखो, हुने करके हटे हैं कि एफ एक्स की ई दी पावर एक्स है। सो देन एफ एक्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड एफ एक्स फॉरवर्ड स्केयर एफ एक्स अप टू फॉरवर्ड दी पावर एन एफ एक्स। सो कि चीज़ बन जू ऑप्शन नंबर बी जी पी, हुने करके हटे आप। ठीक। सम नंबर 12, पिकार्ड मैथड इज यूज फॉर अलजेब्रिक इक्वेशन, फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ते पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसका आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर बी
ਫੋਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਕਾਰਡ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਕਾਰਡ ਮੈਥਡ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ यूलर मैथड, एक आऊगा मॉडिफाई यूलर मैथड, एक आऊगा रंगे गुप्ता मैथड। ये 4 मैथड आउंदे इहदे विच। फिर आउंदा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इहदे विच भी अपने कोल 3 मैथड आउंदे, 3-4। एक हुंदा ट्रैपीजोडियल मैथड, ट्रैपीजोडियल मैथड ਜਿਹਦੇ सब इंटरवल ਹੁੰਦੇ शायद अपने ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ सब इंटरवल ਹੁੰਦੇ ਆ, सब इंटरवल ਇਹਦੇ ਈਵਨ ਔਰ ਔਡ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ट्रैपीजोडियल मैथड ਦੇ, ठीक है ना। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਗਾ n = 1 ਕਹਿ ਲਓ, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म च आऊगा, स्ट्रेट लाइन ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। फिर आउंदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सिंपसन 1/3 रूल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ सब इंटरवल ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਈਵਨ इंटरवल ਬਣਦੇ ਆ 1/3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ मतलब कि ਜੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। इतने लिख लो क्वाड्रेटिक या पैराबोला फॉर्म, ठीक। फिर होगा सिम्पसन 3/8 रूल। तो ਜਿਹੜੇ ਇਹ सब इंटरवल बनते वो बनते ਇਹਦੇ मल्टीपल ऑफ 3 बनते हैं, ओके। सो ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ आंसर आऊगा वो हमेशा आऊगा क्यूबिक फॉर्म च आऊगा, क्यूबिक ਦੇ ਵਿੱਚ। 1/3 ਦੇ ਆਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਕਹ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਹ ਲਓ। 3/8 ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਫਾਰਮ ਚ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੂਲ ਰੂਲ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਵੈਡਲ ਰੂਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਲ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਡਲ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ट्रैपीजोडियल विच n की वैल्यू 1, सिम्पसन 1/3 n की वैल्यू 2, 3/8 n की वैल्यू 3। सो ਜਿਹੜੇ 5 मैथड बोले ये आते न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ਜਿਹੜੇ 4 आते हैं ये आते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच, ठीक। हाँ जी, सम नंबर 13 नंबर ऑफ सब इंटरवल सिम्पसन 3/8 नहीं करके हटिया, तो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। ऑप्शन नंबर सी का आंसर आ जाऊगा, ठीक है। 1/3 रूल ऑफ नंबर ऑफ इंटरवल, 1/3 नंबर ऑफ इंटरवल की होंगे ईवन होंगे, ठीक। हाँ जी, अगे सम नंबर 15 देखो। हाँ जी, सम नंबर 15 देखो। लैक्चर केडर सवाल आया हुआ है कि फॉर फाइंडिंग रियल रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है x² - f(x - 2) ते बाय न्यूटन रैप्सन मैथड इफ वी चूज x0 1, x1 आप फाइंड करना है। सो रैप्सन मैथड का फॉर्मूला की होंगे x(k + 1) = x of k माइनस f of xk डिवाइड बाय f डैश xk। हम k की वैल्यू 1 पर इतने अपन x1 चाहिए, सो k की वैल्यू 0 पर दो, x0 माइनस f of x0 बाय f डैश x0, ओके। तो भाई आ जाओ फिर एफ डैश एक्स करो पहले 2x - 1, फिर पहले एफ x0 कि अपने को 1 है, फिर f1 लभो कि होगा 1 - 1 तो -2 आ जाऊगा। फिर f डैश 1 लभो वो कला 2 आ जाऊगा, ठीक।
सो एफ डैश वन की वैल्यू चेक करिए 2x माइनस वन होगी। ठीक है, सो फॉर्मूला बन जो एक्स नॉट वन है माइनस एफ एक्स नॉट कि अपने को मतलब इतने एक्स वन इज इक्वल टू के एफ एक्स नॉट वन अपने को माइनस टू है तो एफ डैश वन ये वन ही है, वन प्लस टू कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 मिलता अपन ऑप्शन नंबर ए दे विच, ये अपना आंसर है। सम नंबर 16 न्यूटन फॉरवर्ड आ रिलेशन दसना, एक ही ट्रिक है याद करनी, आ कर लो याद 1 माइनस 4 बैकवर्ड इज इक्वल टू 1 आ ई है, आ ई इनवर्स है। पहला ई चेक करो, ई की इक्वल है 1 माइनस ये भी गलत हो गई तो ई इज इक्वल टू आ भी गलत है, हाँ दो रह गई। ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड इधर रखो 1 या इधर ले उधर ले जाओ, बैकवर्ड इज इक्वल टू ई द इनवर्स 1 माइनस ई इनवर्स। सो ऑप्शन नंबर बी भी रिजेक्ट हो गई ना, सो बच्चे अपने आ ही है, ऑप्शन नंबर सी का आंसर है। क्योंकि चलो हम ये अपने आ ट्रिक याद सी फॉर्मूलिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ सॉल्व करके वेख लिया। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ देखिए ਆਪਾਂ ना डायरैक्ट भी दोनों पासे इनवर्स कर दो, ई दी इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस, देखो बन गया सीधा सवाल, सीधे फॉर्मूला बनया पाया सी। जे सीधा सॉल्व कर सकते सीधा सॉल्व कर लो, नहीं बाय ऑप्शन आ ट्रिक नाल भी आपां लभ सकते सी ये सवाल। ठीक है, फिर रंगे कुत्ता मैथड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी का आंसर है। हाँ जी, सम नंबर 18 रॉन्ग ऑप्शन दसनी केड़ी है। सो देखो ऑप्शन नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन एक्स की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज 2 दसना है। ये सवाल पेपर च भी आया शायद, अब पेपर च पक्का ही है पर मैं शायद MSCQ ऐड नहीं किया। सो देखो ये सवाल अपना बाई n की वैल्यू पुट कर लो 1 एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक्स स्केयर इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो नंबर के रूट आ गए। फिर एक्स एन की वैल्यू 2 पुट कर दो, एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1 तो ये भी दो आंसर प्लस माइनस 1, दो आंसर आएंगे प्लस तो माइनस 1। सो एक्स दी वैल्यू हमेशा दो ही आनी है प्लस माइनस 1, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन भी दो ही आएंगे, ये ऑप्शन सही है। आप लभनी है राइट रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी सिम्पसन 1/3 रूल द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सर्कल, गलत है जी। सो जी सिम्पसन 1/3 रूल है आप करके हटे हैं, जी सब इंटरवल बनते हैं वो ईवन नंबर बनते हैं, जोड़ा वो आंसर आता वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म च आऊगा, क्वाड्रेटिक कह लो या पैराबोला कह लो। ठीक है ना, पैराबोला कर चुके हैं, सर्कल च बनते नहीं। सो ऑप्शन बी अपना आंसर है, ये रॉन्ग है। ट्रैपेजॉइडल रूल एफ एक्स कंसीडर एज अ स्ट्रेट लाइन, ये सही है क्योंकि ये इंटरवल 1 होंगे एन की वैल्यू यूजिंग बाइसेक्शन मैथड इंटरवल दसना है एक्स पावर 4 तो प्लस 2 एक्स पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1। यदा मतलब है कि जो इंटरवल 0 तो 1 भरोगे एक आंसर नैगेटिव आऊगा, जो 0 भरया नैगेटिव हो गया, जो 1 भरांगे 1 प्लस 2 माइनस 1 ये पॉजिटिव। सो जो ये इंटरवल है ये रियल रूट है, सो ये ऑप्शन सही है, आ भी सही है, ऑप्शन बी गलत है। सो बी ऑप्शन अपना आंसर है। सेम रूट ऑफ इक्वेशन दसना बई आप, सो पहले 0 1 भरांगे तो चैक करना एक आंसर एक पॉजिटिव हो एक नैगेटिव हो, या एक नैगेटिव या पॉजिटिव हो। जो 0 भरांगे ये बन जूगा नैगेटिव, 0 भरते जो 1 भरांगे 1 माइनस 4 वो भी बन गया नैगेटिव, तो 0 1 रिजेक्ट। सो जिथे जिथे 1 भरे पहले सॉल्व कर दें। हाँ देखो
जो 1 भरिया उदो नैगेटिव ही है, 2 भर के भी नहीं, 8 - 2 - 4, सो ये बन गया पॉजिटिव 8 - 6। 1 भरे तो नैगेटिव है तो 2 भरे तो की होंगे पॉजिटिव होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जू अपने को। ऑप्शन नंबर सम नंबर 20 ट्रैपीजोइडल आ गया। सो तुम दस्या ही है स्ट्रेट लाइन बनाती है, ये भी रिजल्ट है। ऑप्शन नंबर बी का आंसर, ये भी बी सी। ठीक, हाँ जी, अगले सवाल मास्टर केडर 4061 में आए थे। कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन मैथड एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो शायद यदा आंसर श्योर नहीं, सी ऑप्शन यदा आंसर है, शायद चेक कर लो सी या बी चो, मे बी सी यदा आंसर है, ये तुम चेक कर लो जी। ठीक, सो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बाइजेक्शन मैथड, सो बाइजेक्शन मैथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 होंगे। फिर एक आता अपने को रैगुलर फॉल्सी मैथड, ਉਹਦਾ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ਹੁੰਦਾ 1.618। एक ਹੁੰਦਾ न्यूटन रैप्सन मैथड, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस अपने को ਹੁੰਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ। ठीक, तो ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲਸੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, गोल्डन रेशो। ठीक, सो सम नंबर 22 इसका आंसर 1 आऊगा। 23 फिर वही रिजल्ट आ गया, ई का इनवर्स होगा। सो ऑप्शन नंबर सी आ गया 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सम नंबर 24 लास्ट सवाल अपना, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन मैथड, इसका आंसर 2 आऊगा। ठीक, सो इस नाल जो न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर मोस्टली जिन्ने भी क्वेश्चन पेपर च मिले थे अपन वो आप सॉल्व कर चुके हैं।